Okay, hello student. Good evening one and all. Welcome back to physics class. Today's lecture number 22, chapter 4, laws of motion. So far we have discussed about the theory and all. पूरा theory part हो गया है. Into maybe 2 or 3 lectures we may require the numerical, right? जो pending है. तो चलो let's begin with the numerical. आपको ये मैं पूरा असाइनमेंट दूंगा न्यूमेरिकल का, जो भी मैं क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ. तो ऑल द न्यूमेरिकल यू विल गेट इन द प्रिंटेड फॉर्म. ओके, टाइपिंग फॉर्म में आपको मिलेगा. तो आप क्या करो, जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो दैट टाइम यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन बैंक. ओके, असाइनमेंट देखो आप, क्योंकि मेरे पास आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू राइट. बड़े बड़े न्यूमेरिकल है, लिखने में मेरा काफ़ी टाइम जाएगा. ओके, सो बच्चों लेट्स स्टार्ट. पहले हम सॉल्व न्यूमेरिकल देखेंगे which is given in the page number 68. So textbook solved numerical, textbook solved numerical, page 68, example 4.10. ओके, तो आपके पास पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल में आप देख सकते हैं. तो चलो रीड करते पहले. अ यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक ऑफ मास 30 kg is supported symmetrically by 2 light identical cables. Each can sustain a tension up to 500 Newton. After tying, the cables are exactly vertical and are separated by 2 meter. A boy of mass 50 kg standing at the center of the plank is interested in walking on the plank. How far can he walk? This is an example of बंगड़ी. बंगड़ी पता है आपको, अपने घर में होती है बालकनी में. तो बंगड़ी के जो दोनों साइड पे मेटालिक जो भी रॉड लगा रहते हैं, तो यहाँ पे केबल लगा है. कभी कभी रॉड रहता है, केबल रहता है, रोप भी लगा सकते हैं. और जो वुडन प्लैंक है, बड़ी वाली वुडन प्लेट रहती, उसके ऊपर हम बैठते हैं. झूला, एक झूला टाइप रहता है, राइट. तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये सपोर्ट है, सीलिंग है, दिस इज द सीलिंग. ओके, यहाँ पे 2 केबल ड्रॉ करते हैं which are exactly vertical. Then this is the wooden plank on which the boy is walking. This is wooden plank and which is connected over here at this point. This cable is tied over here. Let this point, I am considering this point is A, consider this point is B. Okay, and the distance between these two cable, that is 2 meter. This distance is given 2 meter. So where will the center of gravity of this wooden plank? Exactly middle में होगा. So I am just drawing this middle point लेते, C point. So at the C point, center of gravity is the point where whole weight of the body acts vertically downward. So weight of the plank will act vertically downwards. Let that weight is equal to W. Okay, and that W is, I am taking the 30 kg. Okay, so 30 kg, okay, multiplied by gravity, so it become 300 Newton. So 300 Newton is the weight of the wooden plank. Okay, if the boy is standing at the middle, so nothing will happen because that weight is divided by 2. दोनों से वो divide हो जाएगा, right? और the weight of the boy is 50 kg weight. तो 50 kg, तो यहाँ पे मान लो सपोज वो यहाँ पे पहुँच रहा है at point D. I am taking this point D. Okay, so let that point, its weight is here, let that weight is W1, which is 50 multiplied by gravity 10, तो वो आ जाएगा 500 Newton. So weight of the boy is 500 Newton, which is acting between the C and B. Okay, so this distance will be how much बच्चों? This will be 1 meter. तो C to D B कितना होगा? C to B भी, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा. लेट द डिस्टेंस x बिटवीन द C एंड D. C और D के बीच में मैंने यहाँ पे डिस्टेंस x लिया है. सपोज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी x. ओके, वी हैव टू फाइंड x. हमको x फाइंड करना है, ठीक है, x कितना है. ओके, नाउ व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग हियर? द फोर्स एक्ट ऑन द केबल, ये T होगा. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस केबल, सॉरी दिस T1 होगा, दिस विल बी T2. Why can't we take the T1 is equal to T2? यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते? ले सकते, लेकिन कभी अगर बॉय नहीं खड़ा हो तो. अभी जब वो चल रहा है, when the boy is walking on the plank, ओके, बंगड़ी पे चल रहा है वो 50 kg वाला बॉय, तो क्या होगा कि ये टेंशन जो वेरी होगा. जब वो when that boy will move towards B,
So tension along the T2 will increase. When the boy will move towards T1, so tension along the T1 will increase. तो जिधर जाएगा उधर उसका टेंशन बढ़ेगा, and that's how we have to consider the tension force along the cable wire which is connected to the plank, that will be different. Okay, so यहाँ पे सब हम गिवन लिख लेंगे पहले क्या क्या दिया है. सो T1 and T2, let T1 and T2 are tensions along the cable, and each cable sustain how much weight? 500 Newton. Each cable sustain weight 500 Newton. Fine. Okay. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? T2 is equal to T2 max. I can take here 500 Newton. आप बोलोगे सर T2 max ही क्यों लिया है, T1 क्यों नहीं लिया है? बराबर है, योर क्वेश्चन इज राइट, बिकॉज दैट बॉय इज मूविंग टूवर्ड्स T2 के तरफ जा रहा है, B के तरफ जा रहा है. तो अगर B के तरफ जा रहा है तो विच केबल वायर हाउ टू टेक टेंशन, दैट इज T2, राइट. तो यहाँ पे T2 मैक्स कितना आएगा? 500 न्यूटन. अगर 500 मैक्स से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? वो केबल टूट जाएगा एंड दैट प्लैंक विल गो डाउन. लेकिन वो नहीं करना है हमको, राइट. तो बॉय हैव टू वॉक सेफली ऑन इधर साइड, दोनों साइड पे वो कितना चल सकता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वुडन प्लैंक. ओके, सो लेट्स अप्लाई. सो यहाँ पे जो भी है फोर्सेज जो एक्ट हो रहे, वेट ऑफ द प्लैंक and weight of the boy act vertically downward. Tensions are T1 and T2 are acting upwards. So T1 and T2 forces or tensions acting vertically upwards, and W and W1 acts vertically downwards. So let's apply the first equilibrium condition for this. So what is the first equilibrium condition बच्चे? यहाँ पे there are only vertical forces. So यहाँ पे we will take this Cartesian coordinate system. This is a y-axis, this is x-axis, this is negative y, and this is negative x. Okay, so there is no any horizontal force acting. So summation of x will be 0. Only the vertical forces along y-axis only. So we can use summation of Fy is equal to 0. So this is the first condition for equilibrium. First condition of equilibrium, that sum of the forces acting on a body is 0. So let's apply the summation of Fy0. अप्लाई करते, तो पहले क्या आएगा? वर्टिकल फोर्सेस विच आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो applying first condition of equilibrium, sum of the forces. चलो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? सो T1 प्लस T2, राइट. दो अपवर्ड है इसलिए दोनों पॉजिटिव आएगा. अभी देखो W एंड W1 डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट हो रहे हैं, तो माइनस W1 एंड सम ऑफ द फोर्सेस इज 0. इफ एवरीवन अंडरस्टूड दिस, अगर ये समझ में आ गया कि कहाँ से है, ये कोई रट्टा वट्टा मारा नहीं है, ये कंसेप्ट है. क्या कंसेप्ट है यहाँ पे बच्चों? कि जो भी वर्टिकल फोर्सेस है, वॉट एवर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, सबका एडिशन 0 लेना है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स राइट दिस. T1 plus T2 which is equal to W plus W1 which is equal to, W कितना है बच्चों? 300 और W1 कितना है? 500. दोनों का एडिशन होगा 800 न्यूटन. तो T1 प्लस T2 आएगा 800 न्यूटन. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, सो दैट वी कैन फाइंड, जरूरत पड़ी तो. ओके, अभी हमको निकालना, अभी ये पहला कंडीशन हो गया. नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमको क्या करना है कि वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ मोमेंट्स या सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन of
equilibrium, and that is summation of tau is equal to 0. Okay. Now here let's take the point B as a let's consider here the point equilibrium about A. तो यहाँ पे जो हम पॉइंट लेंगे अबाउट द पॉइंट ए वी हैव टू अप्लाई द टॉर्क. ओके, क्योंकि वो लड़का ऐसे चल के जा रहा है तो यहाँ पे दिस विल एक्ट एज अ पाइवोट, ये पाइवोट का काम करेगा. एंड वी हैव टू फाइंड जो भी फोर्सेस है, वी हैव टू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्सेस, जो भी फोर्सेस है टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए. ओके, सो कंसिडरिंग द पॉइंट ए and the boy is moving toward x meter. Let boy is moving x meter from C towards B x meter जा रहा है, वो एज्यूम करना है यहाँ पे. ओके, देन सो ऑब्वियसली द टेंशन, अगर बॉय इधर जाता है तो इसके टेंशन बढ़ेगा. ओके, लेकिन उसका जो मैक्सिमम टेंशन दिया है वो कितना है, T2 मैक्स होल्डिंग कैपेसिटी, सस्टेन कैपेसिटी कितना है 500 न्यूटन. ओके, देन फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. ओके, देन अभी सब टॉर्क एक्ट करते हैं एक एक. अभी लेट्स फाइंड द टॉर्क ड्यू टू डब्ल्यू की वजह से जो टॉर्क होगा वो तो क्या आएगा बच्चों. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको लेना है कि वो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा. कीप योर मेटालिक पॉइंट, एक राउंडर ले लो, मेटालिक राउंडर आपका जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में. सो टेक दैट मेटालिक राउंडर हियर मेटल पॉइंट, और जो पेंसिल पॉइंट है दैट पेंसिल पॉइंट टू बी टेकन हियर एट सी, और जस्ट होल्ड लाइक दिस. और देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इट इज़ गोइंग क्लॉकवाइज. If you are keeping the pencil point at C and pointer point at A and just try to rotate in the downward direction, क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है. सो जस्ट रोटेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और घुमाओ उसको ऐसा. तो अगर इसे घुमाओगे तो वो कैसे जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दैट, इट इज क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है. क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -W मल्टीप्लाइड बाय दिस पॉइंट C इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A, कितने डिस्टेंस पे हो, AC, विच इज एट अ डिस्टेंस AC. ओके, वापस टेक द पॉइंट D, तो D पॉइंट भी लिया तो भी वो ऐसे ही जा रहा है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है. तो -W1 मल्टीप्लाइड बाय AD प्लस अभी एट D यहाँ पे क्या है, टेंशन T2 एक्ट हो रहा है. सो दैट T2 मल्टीप्लाइड बाय दिस पॉइंट B एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A, कितने डिस्टेंस पे हो, 2. ओके, सो लेट इट इज A भी ले लो, एंड विच इज इक्वल टू 0. जिसको भी ए टर्म अगर ये फोर्स लेने का आ गया, अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन लिखने को आ गया, आपका आधा 50% काम हो गया. दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा. आज ये पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, तो डोंट वरी, वी विल हैव मोर प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, सो डोंट वरी. तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों. -W कितना है, -W इज 300 मल्टीप्लाइड बाय AC कितना है, AC इज 1 मीटर, तो आई एम पुटिंग हियर 1. -W1 कितना है, 500 मल्टीप्लाइड बाय AD कितना है, AD इज 1 + x, सो दिस इज 1 + x प्लस T2 कितना है, 500 होल्डिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय AB कितना है, 2 विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को मैं इधर लेके जाऊंगा. ओके, सो दिस विल बी, आई विल मेक दिस बोथ द पॉजिटिव. आई कैन राइट लाइक दिस 300 प्लस 500, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, प्लस 500x विच इज इक्वल टू 500. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1000 होगा, 1000, तो 1000 लिख लेते हैं, मेरा एक ना स्टेप बच जाएगा. राइट, अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है. 800 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 1000, तो 500x इज इक्वल टू 1000 माइनस 800
तो x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन, 200, 200 डिवाइड बाय 500, 0 0 0 0 कट, तो विच इज 0.4 मीटर. ओके, तो वी गॉट अ x इज इक्वल टू 0.4 मीटर. So boy can walk from C 0.4 meter towards B, or he can also walk towards A. Understand? कोई भी दोनों साइड पे जा सकता है. He can walk. हाँ, लेकिन 0.4 मीटर के थोड़ा भी ज़्यादा अगर गया, मतलब 10 सेंटीमीटर भी आगे गया, तो कोई भी एक केबल टूट जाएगा. अगर इफ इज मूविंग टूवर्ड B, तो ये केबल विल ब्रेक. अगर वो इधर जा रहा है 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 0.4 मीटर से ज़्यादा, तो पहला वाला केबल टूट जाएगा. सो वी कैन वॉक सेफली 0.4 मीटर ऑन ईदर साइड. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, now let's go on the next numerical, which is also solved. सी स्टूडेंट, इट इज़ एग्जाम्पल 4.11. मे बी वही पेज पे होगा, अगले पेज पे कंटिन्यूस. सो लुक एट द सम. अ लैडर ऑफ निग्लिजिबल mass of ladder is negligible, having a cross bar is resting on a frictionless horizontal floor with angle between its legs to be 40 degree. Each leg is 1 meter long. Calculate the force experienced by the cross bar when a person of mass 50 kg is standing on the ladder, that is small g is equal to 10 meter per second square. चलो अभी मैं आपको इसको डेमो दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से. सो हियर दीज आर 2 legs ऑफ द लैडर, राइट. और ये जो लेग है, ये जो लैडर है, इसका मास निग्लिजिबल लिया उन्होंने. ओके, एंड दिस इज द क्रॉस बार इन बिटवीन दिस टू. तो एक क्रॉस बार है और ये जो एंगल लिया है दोनों लेग में 40 डिग्री 40 डिग्री. तो डेफिनेटली जब भी आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, 50 किलो वाला आदमी खड़ा रहेगा, तो क्या होगा, ये जो क्रॉस बार है, क्रॉस बार पे टेंशन आएगा, इसमें डेफिनेट टेंशन आएगा. ये जो क्रॉस बार है, जो मार्कर दिखाया है, दिस मार्कर एक्टिंग एज अ क्रॉस बार, तो इस पर टेंशन आएगा, राइट. वो टेंशन हमको फाइंड करना है कि कितना टेंशन होगा अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है तो, राइट. सो लेट्स इमेजिन द डायग्राम फॉर दिस. इसका थोड़ा डायग्राम इमेजिन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा है. सो लेट्स ड्रॉ द लैडर फर्स्ट. जब आप ड्रॉ करोगे नोटबुक में तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो प्रॉपरली, ओके, so that we can show the forces acting on it, right. So these are the 2 legs. So let this, and which is resting on a, यहाँ पे frictionless horizontal floor है. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है. ओके, और यहाँ पे जो उसकी वुडन थोड़ी प्लेट है, वहाँ पे आदमी जो पेंटर है, पेंटर यूज़ करते हैं, ये वाला लैडर है ना, यूजुअली पेंटर यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर चढ़ के वो दीवार को पेंट करते हैं, राइट. तो ये पेंटर यहाँ पे खड़ा है, ऐसा इमेजिन करो कि पेंटर इज स्टैंडिंग ओवर हियर, और वो पेंटर का मास कितना है, 50 किलो, तो वेट कितना होगा, 50 जो भी होगा. तो द वेट ऑफ द मैन स्टैंडिंग हियर, और उसका जो वेट है वो यहाँ पे नीचे एक्ट होगा, दैट इज W इज इक्वल टू 50 kg वेट, दैट इज 50 kg वेट, और 500 न्यूटन आएगा. ओके, तो ये आ गया. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे व्हेन दी लेग्स आर टचिंग टू हियर, टच हो रहा है, लेकिन उस पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, राइट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 रहेगा. लेकिन से देयर इज ओनली नॉर्मल रिएक्शन. लेट दिस पॉइंट इज A, लेट दिस पॉइंट बी B, राइट. द नॉर्मल रिएक्शन एट A विल बी, आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट, विच इज Na, सफिक्स Na, which can be written as N. Okay, and here NB, यहाँ पे NB which can also be taken as N. आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वल क्यों है, वो बराबर है क्वेश्चन. यहाँ पे जो आदमी खड़ा है सेंटर पे, तो दोनों जो उसका वेट बैलेंस कर रहा है, और बीच में यहाँ पे है हमारा क्रॉस बार, ये क्रॉस बार है, राइट. सो लेट दिस पॉइंट, इसको कुछ नाम दे देंगे, राइट. सो उसको A B C आएगा, दिस पॉइंट इज C. ओके,
देन दिस पॉइंट इज बाद में, सो टेंशन अलॉन्ग दिस इज टी, यहाँ पे जो टेंशन होगा टी होगा, टेंशन अलॉन्ग दिस पॉइंट, दोनों टेंशन होगा, दोनों लेग की वजह से टेंशन होगा, एंड दोनों ऐसे होगा अपोजिट टू ईच अदर. ओके, नाउ द एंगल मेड बाय दिस टू लेग्स, यहाँ पे जो एंगल बना है ये टोटल एंगल इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री. ओके, और तो ये सिंगल एंगल कितना होगा, ये 20 होगा, बीच में से जा रहा है ना, राइट. सो अगर ये 20 है और ये इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करो, बराबर, इसको आगे एक्सटेंड किया. नाउ ये मैं एक्सटेंडिंग दिस, इसको पूरा ऊपर उल्टा एक्सटेंड कर दी. ओके, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू. इफ दिस इज 20 डिग्री एंड ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, AC एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द टू पैरेलल लाइंस. इफ दिस एंगल इज 20, सो उसका अल्टरनेट एंगल ये भी 20 होगा, दिस इज ऑल्सो 20. अगर ये पूरा 40 है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये 70 होगा. इधर कितना होगा, ये भी 70 होगा, दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल की एडिशन कितनी होती है, इट इज़ 180 डिग्री. और ये टोटल 40 है और ये 20 है. रिमेंबर दिस इज 20, ये 20, तो ये भी 20 आएगा, दिस इज ऑल्सो 20, तो ये भी 20 आएगा, 20 डिग्री. ओके, और ये टोटल 40 डिग्री है, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. तो ये 20 है, राइट, तो ये 70 होगा, दिस विल बी 70, दिस विल बी ऑल्सो 70. तो इसको नाम देंगे ABC हो गया. इसको नाम मैं D दे देता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज D. ओके, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ड्रॉ कर सकता हूँ. तो ये पॉइंट है E, दिस पॉइंट इज F, इसको F ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज F, करेक्ट. तो आ गया अभी, तो सब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया. अगर ये डायग्राम इस तरह ड्रॉ किया तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ईजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी. ओके, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे. So weight of the man acting W acts vertically downward 50 kg. Okay, weight which can be written as, अगर यहाँ पे G is equal to 10 लिया तो which is 50 multiplied by 10 which is equal to 500 Newton weight of the man acting. Okay, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग ऐसे हो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो बोथ विल डिवाइड, जो नॉर्मल रिएक्शन हैगा तो वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो चलो अभी ये काम करते हैं यहाँ पे. लेट्स अप्लाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये जो स्टैंड है वो स्टैंड हिलना नहीं चाहिए. अगर आदमी खड़ा है वहाँ पे पेंटिंग करना है उसको, यस टू स्टैंड फॉर पेंटिंग द वॉल, राइट. तो वो जो लैडर है वो लैडर स्लिप नहीं होना चाहिए, विदाउट स्लिपिंग, राइट. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, first equilibrium condition. What is the first equilibrium condition? Sum of the forces. Okay, अभी यहाँ पे जो भी forces act हो रहे, there is no any horizontal force. अभी यहाँ पे तो कोई horizontal force नहीं. Okay, तो सब vertical force है. तो it is summation of Fy is equal to 0. Summation of Fy is equal to 0 आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, जो vertical forces है Na plus Nb. ओके, और ये W नीचे है तो माइनस W विच इज इक्वल टू 0. लेकिन Na कितना है, Na इज ऑल्सो N प्लस N माइनस 500 विच इज इक्वल टू 0. तो 2N विच इज इक्वल टू 500, तो N इज इक्वल टू 250 न्यूटन. ओके, तो ये क्या आएगा, जो कैपिटल N है वो 250 न्यूटन आएगा. मतलब दिस विल बी 250. ये कितना आएगा, 250. ये कितना आएगा, 250, राइट. ओके, अभी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है यहाँ पे. ओके, सो अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. What is that second condition of equilibrium? Summation of torque is equal to 0. अभी टॉर्क अगर अप्लाई करना है तो वी हैव टू टेक सम पॉइंट अबाउट विच यू हैव टू फाइंड द टॉर्क. तो अब वी विल कंसिडर द पॉइंट C. लेट अस फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट C ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एंड ड्यू टू द टेंशन. तो ये जो दो फोर्सेस है
दो फोर्सेस की वजह से यहाँ पे हमको टॉर्क अप्लाई करना है. ओके, सो कंसिडरिंग द पॉइंट C about which torque due to NA. अभी ये देखो, यहाँ पे मेटालिक पॉइंटर रखो तुम्हारा. अभी तुमने डायग्राम ड्रॉ किया है पेपर पे साइमल्टेनियसली, तो टेक द राउंडर ले लो. कीप द मेटालिक पॉइंटर एट C, यहाँ पे रखो. कीप द पेंसिल पॉइंट एट A, यहाँ पे रखो. एंड जस्ट सी द रोटेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. तो एरो के तरफ उसको रोटेट करो. तो ये कैसे रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज. हाउ इट इज रोटेटिंग? क्लॉकवाइज. तो द टॉर्क ड्यू टू NA, ओके, टॉर्क ड्यू टू force NA is clockwise. बराबर, क्लॉकवाइज आएगा. नाउ टेक द मेटालिक पॉइंटर हियर एट C एंड पेंसिल पॉइंट एट F, क्योंकि टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है ना एट पॉइंट F. नाउ सी द टेंशन इज गोइंग दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जा रहा है. ओके, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? इट रोटेटिंग इन द दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट इज पॉजिटिव. ओके, द टॉर्क ड्यू टू टेंशन T, okay, at F will be anti-clockwise. Okay, तो चलो अभी अप्लाई करते हैं. वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0. तो पहले ये लेंगे यहाँ पे. सो व्हाट इज दिस फोर्स? NA multiplied by this point is at what distance from C? It is AC, लेकिन निगेटिव आएगा बच्चों यहाँ पे क्योंकि वो क्लॉकवाइज है. प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन T. ओके, लेकिन यहाँ पे टेंशन T आएगा, T मल्टीप्लाइड बाय. ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग. यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग आएगा. ये दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी DC आएगा. ओके, इट इज DC विच इज इक्वल टू प्लस फोर्स ड्यू टू टेंशन T मल्टीप्लाइड बाय. नाउ यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट, दिस फोर्स और एक टेंशन, राइट. तो इधर आएगा ये एक्चुअली. तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी EF. सो T इंटू EF, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एट पॉइंट C. ओके, ये आएगा यहाँ पे, और टेंशन जो है इसका बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? दैट विल बी द दिस डिस्टेंस EF रहेगा. ओके, सो दैट विल बी EF विच इज इक्वल एंड प्लस विच इज इक्वल टू 0 आएगा. तो अभी यहाँ पे DC फाइंड करना पड़ेगा हमको. सो लेट्स अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री हियर. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दें. Apply the trigonometry. So what is the sin 20 here? If you take the right angle triangle from right angle triangle, कौन सा right angle triangle है? ADC. From this sin 20 can be written as opposite side क्या आएगा? DC upon hypotenuse will be AC. So which is equal to DC is equal to AC sin 20. ओके, तो लेकिन AC कितना है? AC इज द लेंथ. इसका लेंथ, लेग ऑफ लेंथ कितना है? L लिया मान लो. ओके, सो लेट द लेंथ ऑफ लेग इज L. लेंथ इज L विच इज 1 मीटर. ओके, बाद में लेंगे हम लोग. सो L sin 20, तो यह आ गया DC. अभी let us take this triangle FEC, right angle triangle FEC, right angle triangle FEC. okay, so it will be क्या आएगा? sin 20. ये भी 20 डिग्री आएगा क्योंकि ये 20 है ना, तो उसका अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल. तो यहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे cos लेना पड़ेगा. cos 20 इज इक्वल टू
cos 20 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो. सो एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट इज एफ ई और ई एफ, एडजेसेंट इज ई एफ मल्टीप्लाइड बाय, ओके, ई एफ सॉरी ई एफ अपॉन आएगा, ई एफ अपॉन हाइपोटेंस कितना है सी एफ. सो ई एफ इज इक्वल टू सी एफ कॉस 20. लेकिन सी एफ कितना है बच्चों, दिस सी एफ इज एल बाई टू, पूरा कितना है एल है, इसका बीच में है मिडल में, तो विच विल बी एल बाई टू. तो ई एफ इज इक्वल टू एल बाई टू कॉस 20. ओके, तो इक्वेशन 1 देते, लेट अस गिव इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन दिस इक्वेशन 1. अब इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, उसको उधर शिफ्ट ले लेते. सो दिस कैन बी रिटन एज टी इंटू ई एफ इज इक्वल टू कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई डी सी. ओके, सो टी मल्टीप्लाइड बाई ई एफ कितना है, ई एफ इज 1 एल बाई टू कॉस 20 विच इज इक्वल टू एन यहाँ पे बाद में उसको करेंगे, एन मल्टीप्लाइड बाई डी सी कितना है, डी सी इज एल साइन 20. ओके, तो यहाँ पे एल एल कट हो जाएगा, ओके, और हमको निकालना है टी इज इक्वल टू, ये तो इधर आ जाएगा, तो 2n साइन 20 अपॉन ये कॉस इसको डिवाइड हो जाएगा कॉस 20. ओके बच्चों, सो दिस कैन बी रिटन एज 2n टाइम्स tan ऑफ 20. ओके, सो t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन दी हमने कैलकुलेट किया है 250 मल्टीप्लाइड बाय tan 20 कितना है, tan 20 का वैल्यू दिया है पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है 0.364. लॉग टेबल में आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 0.364. यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम द लॉग टेबल, ओके, एंड जस्ट डू द कैलकुलेशन. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 182 न्यूटन. सो टेंशन अलॉन्ग दिस, so tension along the cross bar will be 182 Newton. This is the final answer. So थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिकी था थोड़ा न्यूमेरिकल. ओके, टेक्स्ट बुक में इतने स्टेप्स नहीं दिए, बट आई हैव गिवन मेनी स्टेप्स. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो अभी लेटेस्ट सॉल्व दी अनसॉल्व न्यूमेरिकल गिवन इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में सॉल्व हो गए दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. अभी जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है ये टॉपिक के बेस पे दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो आपके असाइनमेंट में ये होगा 3 नंबर का होगा. ओके, दिस विल बी 3 नंबर्स, राइट. सो लेट अस सॉल्व दिस 3 नंबर का. वुडन प्लैंक 2 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ मास 20 kg is pivoted 2 points 0.5 meter from each end. A person of mass 40 kg start walking from one of these pivot to the further end. How far can the person walk before the plank topples? अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़रा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ तो यू विल गेट अ क्लियर लिटिल आइडिया. तो ये प्लैंक है 2 मीटर लंबा एंड विच इज़ सपोर्टेड ऑन द 2 एजेस, 2 नाइफ एजेस है, यहाँ पे ट्राइंगुलर एजेस है, उस पर वो सपोर्ट है, राइट. तो और सेंटर पे इसका जो मास है, द मास ऑफ दिस प्लैंक विल बी एट द सेंटर मिडल पॉइंट पे, जो भी कितना दिया 20 kg. तो 20 इंटू 10 कितना आएगा 200 न्यूटन. तो 200 न्यूटन वेट ऑफ दिस प्लैंक एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एट द सेंटर, वो सी पॉइंट रहेगा, और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. ओके, एंड नाउ द मैन इज वॉकिंग ऑफ 40 kg. उसका मास कितना है आदमी का 40 kg. तो उसका वेट कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 करो, जो भी आएगा 400 न्यूटन. तो ई स्टार्टेड वॉकिंग, सेंटर पर रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेंटर पे होगा तो टॉपल नहीं होगा. देखो ना यहाँ पे, अगर मान लो इफ़ द मैन इज वॉकिंग, जस्ट जैसे वो कोई भी एक एंड पे आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, फ्रॉम एनी पॉइंट. मान लो ई स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट किया उसने, राइट. तो इधर सेंटर पे आया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर जब जाएगा टूवर्ड्स बी तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, इधर का जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 0. अभी देखो यहाँ पे दोनों सपोर्टेड है,
the plank is supported on the two knife edges. So for equilibrium condition, the two vertical forces are acting, which are exerted by the edge on the plank in the vertically upward direction. तो यहाँ पे R1 आएगा और यहाँ पे R2 आएगा. These are the reaction forces for equilibrium condition, right? तो जैसे आदमी चलने का शुरू करेगा, जैसे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में का पॉइंट अगर क्रॉस करेगा, इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स बी, तो व्हाट विल हैपन, दिस पॉइंट, this reaction force will become zero, and this side the plank will topple like this. Okay, but what we have to calculate, how far can the person walk before the plank topples. That वो आदमी को चलना है, he is walking, लेकिन ऐसे ही वॉक करना है, ऐसे दौड़ना नहीं. दौड़ेगा तो क्या होगा, ये टॉपल हो जाएगा, गिर जाएगा, प्लैंक विल फेल डाउन. वो नहीं करना है, यस टू वॉक स्लोली. ओके, धीरे 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 चलना है. कब तक, जब तक वो टॉपल ना, अभी उधर लग रहा है टॉपल हो रहा है तो वो थोड़ा पीछे हट जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो वी हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस. अभी चलो इसका डायग्राम हम पहले इमेजिन करेंगे कि डायग्राम कैसा होगा. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द प्लैंक ऑफ 2 मीटर लॉन्ग. तो 2 मीटर लॉन्ग का प्लैंक ड्रॉ करते हैं, थोड़ा नीचे लेते. सो दिस इज द प्लैंक ऑफ 2 मीटर वुडन प्लैंक, राइट. सो लेट दिस पॉइंट इज ए, इसको मैं पॉइंट ए लूंगा. लेट दिस पॉइंट बी बी, एंड दिस प्लैंक इज सपोर्टेड ऑन 2 knife edges which are kept at a distance of 0.5 meter from both the ends. Okay, तो हो सकता है ये बीच में का पॉइंट होगा, ये दिस विल बी द, ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो यहाँ पे होगा ये. सो दिस इज व्हाट द नाइफ एज, आई एम मार्किंग दिस पॉइंट ऑन विच इट इज सपोर्टिंग. ओके, लेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी ले लेते. तो यहाँ पे उसको विथस्टैंड करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन फोर्स विल एक्सर्ट, ओके, इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स काम करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो लेट दिस इज R1, यहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स होगा. लेट दिस इज R2. ओके, सो what is the another force, vertical force, downward, that is the weight of the plank which acts vertically downwards. Let that force W which is equal to, okay, mass कितना है 20 kg, तो यहाँ पे आएगा 20 kg weight. The force acting, the weight of the plank acts vertically downward. Okay, now the man is walking, right. सो ये कितना होगा, लेट दिस पॉइंट, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज P, इसको P ले लेते. दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, पाइवोटेड पॉइंट वेयर द नाइफ एजेस आर केप्ट, दैट पाइवोटेड पॉइंट आर P एंड Q. तो अगर ये 0.5 है, दिस इज 0.5. ओके, तो ये टोटल कितना होगा, A to C कितना होगा, A to C विल बी 1 मीटर. तो C to B कितना होगा, C to B इज ऑल्सो 1 मीटर. ओके, देन Q to B इज, दिस इज 0.5 on both the sides. तो दिस इज ऑल्सो 0.5, ये भी 0.5 होगा. सो दिस इज ऑल्सो 0.5. सो बोथ द पाइवोटेड पॉइंट आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर. तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो, 0.5 मीटर पे. नाउ द मैन इज वॉकिंग. लेट द पोजिशन ऑफ मैन बियॉन्ड सी. तो आई एम टेकिंग हियर, यहाँ पे मैं आदमी को चल रहा है, इज रेस्टिंग हियर, चल रहा है. उसके आगे गया तो टॉपल हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द मिनिमम पॉइंट. ओके, यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं. लेट दिस पॉइंट इज द D, इसको D ले लेता हूँ मैं. लेट दिस पॉइंट इज D, द वेयर द मैन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट D, एंड दैट D पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम द C पॉइंट. तो C पॉइंट से मैं कितना ले रहा हूँ, उसको X डिस्टेंस में ले रहा हूँ. ओके, एंड सॉरी ये X डिस्टेंस फ्रॉम P लेंगे. वी विल टेक दिस पॉइंट D from P will be X आएगा. Okay, let the point X from the P, and from Q it will be small d. तो ये D लेंगे. The position of man from Q pivotal point will be small d. The position of man from the pivotal point P will be X. Okay, तो ये सब यहाँ पे डायग्राम में, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, विच शोज द डिफरेंट फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस उसको हमने दिखा दिए, राइट. बस अभी हमारा काफ़ी काम हो गया, 20% जॉब होगा यहाँ पे.
तो अभी क्या करेंगे, वी विल अप्लाई दी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, राइट. तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने देखा, समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग जीरो. और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, समेशन ऑफ टॉर्क द मोमेंट अबाउट द गिवन पॉइंट विल बी जीरो. ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ले लेंगे क्या क्या दिया है, व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज, गिवन डेटा. तो गिवन डेटा इज हियर द W, तो यहाँ पे जो आदमी का वेट है वो W1 लेंगे हम लोग यहाँ पे, विच इज़ 50 kg, 50 kg, 50 या 40 है, इट इज़ सॉरी इट इज़ 40 kg, 40 kg वेट, द वेट ऑफ द मैन इज 40 kg वेट विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. देखो यहाँ पे दो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और दो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है. ओके, सो हियर R1 एंड R2 are the reaction forces, are the reaction forces at pivot point P and Q respectively. बराबर. Then W and W1 are the weight of the plank and man walking, okay, man walking respectively at C and D, okay, at C and D respectively. So point C located from 0.5 from P, okay. So C तो यहाँ पे लिख लेते हैं PC is equal to 0.5 meter, okay. Then AP is equal to 0.5 meter. Then QB is equal to 0.5 meter. Then CQ is equal to और QC ले लो 0.5 meter, right. And PD is equal to X. और यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, स्मॉल डी किधर गया, ये वाला. सो QD इज इक्वल टू स्मॉल डी. तो ये सब हमने एज्यूम कर लिया. ये दिस विल, अगर ऐसे लिख लिया ना तो वी विल फाइंड इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. सो अप्लाइंग फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, ये दिस विल बी द व्हाट आर दी फोर्सेस आर एक्टिंग हियर, R1 वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पे जो है, लेकिन दिस R1 विल बी जीरो बिफोर टॉपल, राइट. सो R1 इज इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ पे. देन लेट्स फाइंड, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, we will directly use the second equilibrium condition. Okay, so applying second equilibrium condition, now the man is walking from center towards B के तरफ जा रहा है, तो क्या होगा कि ये this will be move up, ये ऊपर जाएगा. So consider that the point Q, so it will rotate about this, इसके अबाउट घूमेगा, ऐसे घूमेगा ये जो है ना स्केल. तो ये जो वुडन प्लैंक है, दिस प्लैंक विल मूव लाइक दिस. तो पाइवट पॉइंट कौन सा होगा, Q विल बी द पाइवट पॉइंट, क्योंकि आदमी इधर जा रहा है. अगर वो इधर जा रहा है तो P विल बी द पाइवट पॉइंट, ऐसे घूमेगा वो. लेकिन यू हैव टू टेक Q एज अ पॉइंट अबाउट विच इट रोटेट्स. ओके, द प्लैंक विल रोटेट लाइक दिस. तो ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो R1 जीरो हो जाएगा. When it topples, okay, so R1 will become 0. So let us apply the moments about the point Q. Okay, so torque due to W1 about point Q. Okay,
एंड दैट टोटल सम विल बी जीरो, समेशन ऑफ टाउ वो जीरो आएगा। यहाँ पे R1 भी एक्ट हो लेकिन R1 जीरो है। ओके सो ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस R1 इंटू क्या आएगा पी क्यू, देन मोमेंट ड्यू टू दिस W, वही कंसेप्ट यूज करना है, कीप द मेटालिक पॉइंटर एट Q, कीप द पेंसिल पॉइंट एट C, और उसको घुमाओ, कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, सो दैट विल बी पॉजिटिव। ओके सो प्लस W मल्टीप्लाइड बाय CQ this distance CQ, okay, plus W1 multiplied by W1 is located at DQ or QD plus force at this point R2, okay, वो नहीं टॉपल हो रहा है, वो पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है, राइट, सो R2 बट दिस पॉइंट इज लोकेटेड देयर, वही से निकाला है, so that will be 0 and the total sum is 0. This is the torque due to the number of forces acting in the body. जो फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकल फोर्सेस, राइट, तो वर्टिकल फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो एक्ट हो रहा है उसके वजह से जो भी होगा वो हमको यहाँ पे लेना है, राइट। तो ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो अपना काम आसान हो जाता है। तो देखो बच्चों, दिस विल बी 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस W कितना है, W इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 kg वेट है वो, देन इंटू CQ, बट CQ कितना है, CQ इज 0.5, तो 0.5 मैं इसको हाफ ले लेता हूँ, प्लस W1 कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाय QD मतलब विच इज़ अननोन, ये स्मॉल d लिया है डिस्टेंस, दिस इज स्मॉल d, ओके, तो ये स्मॉल d आएगा ऊपर दिया है, विच इज स्मॉल d विच इज इक्वल एंड प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, R2 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 10, सो 10 प्लस 40D इज इक्वल टू 0, देन 10 इज इक्वल टू और 40D इज इक्वल टू माइनस 10, तो D इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 40, so 0 0 cut which is minus 1.4, 0.25 मीटर। तो डिस्टेंस भले वो नेगेटिव में आ रहा है लेकिन इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, सो 0.25 मीटर। तो बच्चों वी गॉट दिस 0.25 मीटर फ्रॉम 0.20 मीटर फ्रॉम Q से 25 मीटर 0.25, लेकिन ये भी ये पूरा 0.5 है, तो C से कितना होगा, सेंटर से भी 0.25 आएगा, राइट। So from C, okay, each man walk safely at 0.25 meter. Then from P से कितना होगा 0.5, ये कितना है 0.5 प्लस 0.25, तो कितना आएगा 0.5 प्लस 0.25 which is 0.75 meter from P. Now how much distance from the A? From A, man is located at A, from A equal to, तो ये कितना पहले वाला 0.5, so 0.5 plus 0.75 which is equal to 1.25 meter. So the man will be safe at 1.25 meter before toppling this. ये R1 0 होगा, R1 कंसिडर 0 के लिया क्योंकि वो टॉपल हो सकता है, अगर टॉपल होगा तो ये R1 0 हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स विल बी 0, देन यू विल गेट टॉपल, तो दैट इज द कंडीशन, ओके, ऑप्टिमम कंडीशन है वो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, लेट्स अ वन मोर न्यूमेरिकल, बहुत इजी है।
एक छोटा न्यूमेरिकल लेंगे क्योंकि बड़ा को टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन में. विल टेक द स्मॉल न्यूमेरिकल. अपना 4 है. आप असाइनमेंट में देख लो कितने नंबर का है, थोड़ा नंबर वेरी भी हो सकता है. फोर्स F इज इक्वल टू 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप न्यूटन. ओके, acts on a particle whose position vector is given R is equal to I cap plus J cap plus K cap in मीटर में दिया उसका. ओके, नाउ फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन टू m. राइट, बहुत सिंपल है. सो गिवन ऑलरेडी गिवन टू फाइंड द टॉर्क. Okay, torque is a vector quantity which is a cross product of position vector and the line of action of force. Okay, जहाँ पे जो लाइन पे फोर्स एक्ट रहा है वो हमको लेना है. राइट, सो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f. ओके, तो यहाँ पे कोई एंगल वगैरह दिया नहीं तो हम लोग क्या ले सकते थे, RF sin थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. लेकिन बच्चों के यहाँ पे डिफिकल्ट ऐसा लगता है कि सर कैसे सॉल्व करने का, कैसे लेने का, क्रॉस प्रोडक्ट लेने का, डॉट प्रोडक्ट लेने का. वेरी गुड क्वेश्चन. राइट, तो बच्चों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वी आर गेटिंग स्केलर. जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का तो वी आर गेटिंग स्केलर क्वांटिटी. लेकिन यहाँ पे टॉर्क क्या है, वेक्टर है, तो वी कैन नॉट टेक डॉट प्रोडक्ट, सो वी हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट. राइट, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है. राइट, सो इन द डिटरमिनेंट फॉर्म क्या आएगा, इट विल बी इसके जो है RX. राइट, IJ क्या आएगा, IJK. कोएफिशिएंट ऑफ R पहले आएगा, जो R के कोएफिशिएंट पहले आएगा. तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ I हियर, 1 1 और दिस इज 1. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हियर दिस, FX FY FZ, RX RY RZ. ओके, तो FX के यहाँ पे 2, व्हाट इज FY -2, व्हाट इज FZ 1. अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी, उल्टा कर दिया तो रॉन्ग आएगा आंसर. सो बी केयरफुल, टेक इनटू दिस ऑर्डर ओनली. जो पहले R है ना तो R के पहले कोऑर्डिनेट ले लो. टेक द कोएफिशिएंट ऑफ R फर्स्ट और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स के लेने के. राइट, अभी बहुत ईजी है. सो लेट्स फाइंड द टॉर्क. टाउ इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज I कैप इनटू. तो जब भी यहाँ पे ये सॉल्व करोगे, आपने स्केलर वेक्टर में देखा होगा, तो इसको पहला रो और पहला कॉलम को क्लोज कर दो. जस्ट क्लोज दिस लाइक दिस, ऐसे बंद कर दो. तो क्या बचा, अभी लेफ्ट टू राइट ले लो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 1 आएगा. सो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, सो 1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, देन प्लस जे जब लेते हो तो क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को क्लोज कर दो. एंड व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स राइट टू लेफ्ट लेना है. 1 इंटू 2 लेना है, दैट इज 2, माइनस 1 इंटू 1 -1 प्लस के कैप को क्या आएगा, इसको क्लोज करो. देन व्हाट आर द एलिमेंट लेफ्ट हियर, 1 1 2 2 2 -2. अभी लेफ्ट टू राइट लेना है, दिस इज -2, दिस विल बी -2. फाइन, सिर्फ मिडल में अगर पॉजिटिव चाहिए तो आपको राइट टू लेफ्ट लेना है. तो अगर आपको वही ऑर्डर मिला है लेफ्ट टू राइट तो बीच में नेगेटिव साइन दे दो. राइट, सो कोई कुछ भी कर सकते हैं आप. टाउ बार इज इक्वल टू, सो दिस विल बी 3I कैप, दिस विल बी प्लस J कैप, ये क्या आएगा, -4K कैप. दिस इज द फाइनल आंसर. जस्ट चेक इट. yes, correct, 3I plus J plus minus 4K. So this is the torque produced due to this force. Got it? So just take a screenshot. चलो और एक सम ले लेते इस पेज पे. A thin disc of diameter 0.8 meter. Disc of diameter of disc दिया है. Diameter of disc D is equal to 0.8 meter
तो रेडियस क्या आएगा, r इज इक्वल टू d/2 विच इज 0.4 मीटर. ओके, is rotated about an axis through its center by application of a force of 120 न्यूटन. तो फोर्स कितना लगा रहा है, 120 न्यूटन. ओके, एज शोन इन फिगर बिलो फिगर दिया है, तो डायग्राम में भी गिवन. दिस इज द डिस्क विच इज रोटेटिंग लाइक दिस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अबाउट द एक्सिस. ओके, देन इट रोटेट लाइक दिस, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो. दिस द टॉर्क इज एक्टिंग हियर दिस वे विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क. ओके, हमेशा टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क होगा. तो फोर्स ऐसे एक्ट होगा, ये दिस इज फोर्स एफ, और उसको परपेंडिकुलर क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर आर होगा. दिस इज वेक्टर आर. ओके, सो विद द पोजीशन वेक्टर आर होगा, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज द फोर्स, जस्ट फाइंड इट. सो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ओके, अब यहाँ पे कोई आई जे के यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, तो कैसे फाइंड करोगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा. ओके, लेकिन यहाँ पे साइन व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बट विच इज 90, साइन 90 इज थीटा इज 90 डिग्री. तो साइन 90 कितना आया था, साइन 90 इज 1. सो टॉर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. सो टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी आर इंटू एफ. आर कितना दिया है, आर इज 0.4, रेडियस इज 0.4 इंटू फोर्स कितना है 120, सो विच इज 4.8, यस 48 न्यूटन आएगा, सॉरी हाँ 48 न्यूटन मीटर आएगा. टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर. सो दिस इज द टॉर्क. सो सिंपल न्यूमेरिकल. ओके, टाउ इज इक्वल टू 48 न्यूटन मीटर. बहुत सिंपल है. यहाँ पे ये डायग्राम दिया है उन्होंने, तो डायग्राम के जैसे टॉर्क एक्ट होता होगा. टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर द प्लेन होगा, राइट. मतलब ये फोर्स, मतलब ये पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स, और दोनों को परपेंडिकुलर क्या आएगा, टॉर्क, एज पर द राइट हैंड थंब रूल. ओके, द जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर्स. तो यहाँ पे आर इधर है, फोर्स इधर है, दोनों को परपेंडिकुलर टॉर्क होगा. ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो बच्चों, आज इतना ही. लेट्स वाइंड अप. सो चलो, टुमारो वी विल अगेन सॉल्व दी फ्यू न्यूमेरिकल. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास. तो और 2 लेक्चर हमको न्यूमेरिकल में देंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.